Yes. Today see surface area of sphere and hemisphere. Surface area of cube, cuboid, cylinder and cone we discussed. Now the surface area of sphere and hemisphere. So sphere is the three-dimensional figure like this, just like orange, just like football. The shape is known as a sphere. This type. In sphere, there is only one dimension. This will be its center, and this will be the radius of the sphere. Only one dimension here, radius. In this, just like circle, the relation between diameter and radius is same as circle. Diameter is twice of radius of the sphere. Here, we have to find the surface area of a sphere. Surface area of a sphere. The formula is 4 pi r square. Since there is not any other surface here, there is no any edge in sphere, so the total surface area of sphere is also 4 pi r square. This formula you will use. इसके फॉर्मूला के एक्सप्लेनेशन के लिए एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी है कि आप यहाँ से इधर से एक नीडल प्रेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक थ्रेड लेंगे और ऑल अराउंड इट जस्ट लाइक दिस इसको पेस्ट करते हुए आएंगे. इसकी जो लेंथ रहेगी दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और उस लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो वो 4 पाई आर स्क्वायर के नियर अबाउट आती है, इसके इक्वल आएगी. इसलिए जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है. ये लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जो भी आप बोलना चाहें, दोनों के दोनों सेम होते हैं. इसके लिए मीन्स इसके लिए जो क्वेश्चन आएगा सिंपली आपसे कहेगा इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 7 centimeter, then find its total surface area. Directly you will use the total surface area of sphere in 4 pi r square, and r is 7 centimeter, so total surface area is 4 into 22 by 7 into r square, 7 into 7. 7 cancel down and we will multiply. It will be 88 multiply 7, 56, 5 and 61 centimeter square. This will be the surface total surface area or curved surface area, whatever he asked. This will be the formula. If he gives you the diameter, suppose he said diameter is 20 centimeter, then he asks find curved surface area or total surface area of the sphere. So firstly you will find the radius, and radius will be diameter by 2. That will be 20 upon 2 means 10 centimeter. 10 centimeter is the radius. Now if you want to find curved surface area, then use the formula 4 pi r square. For total surface area also you will use the formula 4 pi r square. This is the surface area of a sphere. Now when we cut an orange with the help of a knife, we get this shape. This one side, this another side. These two shapes we get. So what is the shape of the half of the orange? This shape, just like bowl, is known as hemisphere, means a half of the sphere.
This is known as hemisphere. In hemisphere, radius will be same. One dimension will be there, only radius. Here, if you want to find curved surface area of a hemisphere, then the formula will be half of the curved surface area of the sphere. And curved surface area of a sphere was 4 pi r square. Then curved surface area of a hemisphere will be 2 pi r square. This will be curved surface area of a hemisphere. Since total surface area of a hemisphere, this will be curved surface area of hemisphere, and this one circle, this more surface in curved surface area, so you will add 2 pi r square plus pi r square. Total will be 3 pi r square. This will be the total surface area of hemispheres. हेमिस्फीयर में जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो कर्व का तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, हाफ ऑफ द स्फीयर. बट जो ये सर्कुलर एज बनेगी इसका, ये सर्कुलर जो सरफेस बनता है इसका जो एरिया रहेगा, जो सर्कुलर बनेगा पाई आर स्क्वायर, वो इसमें और ऐड हो जाएगी. ये इसका एक वन बेस या टॉप जो भी आप मानेंगे, रिवर्स ऑर्डर में रहेगा तो बेस रह जाएगा, इसमें रहेगा तो ये टॉप बन जाएगी. ये सर्कुलर एंड का एरिया इसमें और ऐड करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का बनता है 3 पाई आर स्क्वायर. ओके, सो दीज टू फॉर्मूलाज यू विल लर्न फॉर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. नाउ सी क्वेश्चन से ही आस्क, हेमिस्फीयर में वही रेडियस या डायमीटर देगा तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आप इजीली फाइंड आउट कर देंगे. बात आती है कि जो कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है, वो आपका ऐसी भी शेप का होता है कि मेटल का है, दिस टाइप. इसमें क्या रहेगा कि एक मेटल है, इसकी कुछ थिकनेस है, इसके अकॉर्डिंग आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. कर्व सरफेस एरिया में भी देखिए इसका जो अंदर वाला जो हेमिस्फीयर बनता है, इसमें 2 हेमिस्फीयर बन गया अब आपके पास, एक इनर साइड, उसके रेडियस को हमने ले लिया स्मॉल आर, और जो आउटर बना है उसके रेडियस को ले लिया हमने कैपिटल आर. तो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया है वो आउटर जो है, ये इस सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना होगा. तो इसके लिए तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्मॉलर आर है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है. दिस विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर आउटर है, प्लस जो ये रहेगा ये बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनते हैं टॉप पे इसके, दिस टाइप. जो ऊपर का जो व्यू रहेगा वो ऐसा रहता है इसका. तो इसके लिए ये तो इनर रेडियस, ये आउटर रेडियस. तो अंदर तो खाली है, ये तो कोई एरिया आपने को इंक्लूड इसमें करना नहीं है जब तक टोटल सरफेस एरिया ना पूछे. आउटर, इनर और ये कर्व सरफेस एरिया पूछता है तो इसमें आएगा ये. इसके टोटल सरफेस एरिया में ये जो एरिया होता है ये और ऐड करते हैं. कर्व सरफेस एरिया तो हो गया आउटर. टोटल सरफेस एरिया जो आएगा उसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस जो ये एरिया रहता है शेडेड पोर्शन का, ये आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर आर स्क्वायर. पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर आर स्क्वायर. क्या आउटर सर्किल के एरिया से इनर सर्किल का एरिया जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो रिमेनिंग एरिया है ये कैलकुलेट हो जाएगा. नाउ 2 पाई आर स्क्वायर, when we take pi here common we get capital R square minus smaller r square. Take pi as common in whole, we get 2 r square, here pi is common, plus pi common r square minus r square. Pi as it is
2 कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये और ऐड करना है जो टोटल सरफेस एरिया की बात है। कार्ड सरफेस एरिया सिर्फ आउटर आउटर होता है, टोटल सरफेस एरिया में आपका आउटर और ये जो रह जाता है ऊपर का जो ये व्यू बताया हमने, इसका एरिया इसमें और ऐड किया जाता है। आप यहां तक भी कर सकते हैं, इतना करने के बाद भी आप कैलकुलेट कर लें और इसको लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर डायरेक्ट पुट करना चाह रहे हैं तो ये कर लें। ओके, एक क्वेश्चन आता है से रिलेटेड देगा वो, जैसे क्वेश्चन देता है वो कि एक सिलेंडर है, इसके टॉप और बॉटम को टच करता हुआ एक स्फीयर है जो इसमें पुट किया गया है। आपसे कहता है कि इसकी जो रेडियस है वो आर है, वो आर है। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करवाता है या टोटल सरफेस एरिया करवा ले। डायमेंशन आपको किसकी देता है? स्फीयर की देता है। तो इसमें जितना रेडियस आपका स्फीयर का है, रेडियस तो एज इट इज सिलेंडर का भी वही रह जाएगा, बट जो हाइट होती है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का जो होता है वो 2 पाई आर एच बताया हमने आपको, इसमें जो एच होता है वो डायमेंशन और चाहिए। तो इसकी जो एच है वो यहां से यहां आर और यहां से यहां आर, मीन्स जो एच है वो आर प्लस आर आपका 2 आर रह जाएगा। तो आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करेंगे 2 पाई आर एच, तो 2 पाई 22/7 इंटू आर है ही और एच आपका 2 आर है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका जो भी रेडियस देता है आपको, मान लो जी 3 देता है, 7 देता है, जो भी दे, अब ये वैल्यू जो रिप्लेस करनी है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया हमने कि आप करते कैसे हैं। टोटल सरफेस एरिया में तो वही इसके सरफेस का एरिया और इसके सरफेस, इस सर्किल का और इस सर्किल का दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में वो पूछता है, रेडियस देते हैं, डायमीटर देते हैं, तो आपको रिलेशन करके इसी में आपसे रेशियो भी पूछ सकता है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर तो आप फाइंड आउट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर रहेगा आपका 2 पाई आर एच। आर एच मीन्स ये कितना रह जाएगा 2 आर स्क्वायर इंटू 2 आर स्क्वायर। तो 2 2 जब 4 तो ये कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका रह जाएगा 1:1। ओके, सो दिस टाइप क्वेश्चंस यू विल फाइंड in your exercise 13.4. So you will solve your exercise 13.4 based on these formulas only.